a group. So let's start with the chapter number 14, part 2. Along with diversities, there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and traditions, etc. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटीज के अलावा यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस, वेरिएशंस आपको हमारे कस्टम में देखने को मिलते हैं, हमारे फूड में देखने को मिलते हैं. अटायर मीन्स व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल आर वियरिंग इन द ट्रेडिशंस. तो आपको इन सब जगह पे इन सब चीज़ों में फैक्टर्स अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं. इन व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस पीपल आर रिसाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ कस्टम्स दे आर फॉलोइंग, कौन से ट्रेडिशंस वो लोग पहले से एंशिएंट टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक. डिफरेंट रिलीजन्स follow different type of customs and traditions. Okay. Then India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, farming, forest, etc. इंडिया में जोग्राफिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे डिफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लाइमेट यहाँ पे दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है. द डिफरेंट रीजन्स, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट. आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरिया में अलग अलग फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेंगी. कौन से एरिया में, कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है. देन आफ्टर दैट इज क्लाइमेट. कि आप देखते होंगे कि हमारे कंट्री में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन द क्लाइमेट. कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है. अगर आप देखोगे जैसे मुंबई में अभी फॉर एग्जाम्पल इन द समर इफ यू कैन सी इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया there is difference in the climate. You can see the temperature is very high in the month of May and April. The temperature in the western part of the country, the temperature is very high, and if you can see in the June and July the temperature is moist. But at the same time if you can go in the northern parts of India there is a difference in the temperature. There is difference in the temperature in the eastern part of the country, in the southern part of the country. So the climate factor is also very different and it varies from place to place. Then afterward it is topography. Topography means यहाँ पे topography का meaning क्या हो रहा है कि it means the physical distribution of the artificial and the natural factors. कि जो natural and the artificial factors है उसका भी यहाँ पे differentiation यहाँ पे किया गया है. Natural means the God gifted and artificial means that is man made. How these both the factors are distributed in our country. Now there is an activity in your page number 91. The activity is given in the pink box. We will solve that activity. Heading is name of some festivals are given. Write down in the blank people of which religion celebrate them. So first number is Pateti. By whom? By which religion it is celebrated? It is celebrated by Parsi. It is celebrated by Parsi. Okay. Then after second one is Eid. By which religion is Eid celebrated? Eid कौन से religion के, कौन से धर्म के people celebrate करते हैं? So it is celebrated by Muslims. So what we will write here? Muslims. Then after Shivratri. By which religion is Shivratri celebrated? It is celebrated by Hindu people. Hindu. Hindu people. Then after Baisakhi, by whom it is celebrated? By Punjabi people. So it is celebrated by Hindu Punjabi people, right? Then after Christmas, Christmas कौन celebrate करता है? It is celebrated by Christian people. It is celebrated by Christian. Okay. Then after Mahavir Jayanti, it is also celebrated by Hindu people, but in the category of Jain. Jain people Mahavir Jayanti को celebrate करते हैं on the birth anniversary of Mahavir Swami. So again they will repeat this. By whom Pateti is celebrated? It is celebrated by the Parsi people. क्योंकि हमको यहाँ पे religion का नाम लिखना है. You can see in the heading we have to mention the name of the religion over here. So by whom the Pateti is celebrated? By Parsi people. Second number Eid. It is celebrated by the Muslim people. Muslim religion में Eid festival celebrate करते हैं. Third number is Shivratri. It is celebrated by whom? By Hindu people.
Then after fourth number is Baisakhi. It is celebrated by Punjabi people. So the answer is Hindu Punjabi. Fifth number Christmas. By whom it is celebrated? By Christians. Then after last is sixth number Mahavir Jayanti. It is celebrated by whom? By Jain people. So the answer is Hindu Jain people. Now the second activity is name of some of the dances are given below. Fill in the blanks with the name of the state associated with the dance. आपको यहाँ पे डांस का नेम दिया है, फोक डांस का नाम दिया है आपको, and you have to write the state. You have to mention the state of which state this particular folk dance are mentioned over here. First one is Kathakali. Kathakali is the folk dance of which state? Of Kerala. Okay. Then after second number is Ghumar. It is the folk dance of which state? Of Rajasthan. Then after third number Ras Garba. It is the folk dance of Gujarat. Last fourth number Bhangra. It is the folk dance of the which state? Of Punjab. So Kathakali of the Kerala, Ghumar is the folk dance of Rajasthan, Ras Garba is the folk dance of Gujarat, and Bhangra is the folk dance of Punjab. Okay, our next topic is unity in diversity. In page number 91. इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया में जो कल्चर है बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही पुराना है, इसको हम बहुत ही पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं. पीपल ऑफ अवर कंट्री डिफर फ्रॉम अनदर इन मेनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा. मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं. दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन पीपल follow the different customs, the festivals they celebrate, the food they eat, the clothes they wear, the kind of clothes they wear, the customs and traditions they follow since ancient time. So these are the differences, these are the variations we can see in the people of our country. Yet there is emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our country. इतने सारे वेरिएशंस दिखने के बाद भी आपको हमारे कंट्री में इमोशनल यूनिटी फीलिंग दिखेगी. There is a feeling of emotional unity in our country. Okay, और यही हमारे कंट्री की खासियत है. Unity in diversity is the unique feature of our country. यही हमारे कंट्री की खासियत है पूरे वर्ल्ड में. There is a unity though there is a diversity in our India. People of different religions, languages and caste love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for their nation. It is called national unity. यहाँ पे क्या लिखा है कि people of our country follow different religions and the language they speak. आपको सबके लैंग्वेज में, आपको सबके रिलीजन में, सबके फूड में, सबके अटायर में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. तो उसके बाद भी इतने सारे आपको अलग अलग फैक्टर्स दिखने के बाद भी सब लोग इक्वली हमारे कंट्री में साथ में चल रहे हैं. कोई भी किसी भी तरीके का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है. हमारी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करती है. सपोज कि आप अपने क्लास में आते हो, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, तो आप ये देख के फ्रेंडशिप करते हो कि वो मेरे कास्ट का है कि नहीं है, फिर वो मेरे जैसे रिलीजन का है कि नहीं. आप ऐसे ये चीज़ देखकर फ्रेंडशिप नहीं करते हो किसी से. कभी भी आप कहीं पे जाओ काम करने के लिए, कहीं पे वर्क करने के लिए जाओ, तो आप ये देख के नहीं चाहोगे कि वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि पारसी है कि सिख है, वो क्या है, ये देख के कभी भी आप फ्रेंडशिप नहीं करते हो, ना ही कभी उनसे बात करते हो. ऐसा देख के कभी भी उनसे बात नहीं करते हो. सो ये सब चीज़ें जो होती है वो डाइवर्सिफिकेशन दिखा रही है कि कितने हमारे कंट्री में डाइवर्सिटीज़ है. तो इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी आपको नेशनल यूनिटी की फीलिंग है. इट इज़ कॉल्ड नेशनल यूनिटी, और इसी को हम बोलेंगे नेशनल यूनिटी. डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ द नेशनल यूनिटी. यहाँ पे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन द टर्म्स ऑफ सोशल फैक्टर, इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल फैक्टर. आपको इन सब जगह पे डेवलपमेंट देखने को मिला होगा. आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, इकोनॉमिकली, सोशली मीन्स वी हैव चेंज द थिंकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस.
फॉर एग्जाम्पल हमने थिंकिंग कैसे चेंज की है, पहले के ज़माने में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, विडो मैरिज को डिनाई किया जाता था। तो ये सब जो थिंकिंग थी जो टोटली बैकवर्ड थी, हमने आज की तारीख में, आज आप देखोगे तो हमारे कंट्री में इन सब में प्रोग्रेस आया है। इंडियंस लोगों के थॉट में प्रोग्रेस आया है। वाई? बिकॉज पीपल हैव गॉट द एजुकेशन, गुड एजुकेशन मिलने के बाद में पीपल ने सोशली बहुत प्रोग्रेस किया है। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटीज। हमारे इंडियंस ने, पीपल ने पीस मेंटेन किया, सिक्योरिटी मेंटेन की डाइवर्सिटी होने के बाद भी। दैट इज व्हाई डॉक्टर राधाकृष्णन स्टेटेड दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट द नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर हमको हमारे नेशन में सर्वाइव करना है, अगर आपको अपने कंट्री में प्रॉपरली पीसफुली अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको सबको एक मानना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना है। अगर हमारे कंट्री के लोग आपस में फाइट करेंगे, झगड़ेंगे आपस में अपने अपने धर्म को लेके, तो बाकी की कंट्रीज को मौका मिल जाएगा। तो वी कैन नॉट से देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री, राइट। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड द सैक्रिफाइस। यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए गए थे, पेट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस। यहाँ पे 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको हाईलाइट किए गए आपके टेक्स्ट बुक में, पेट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस। हम सोचते हैं कि जो पेट्रियोटिज्म है और जो सैक्रिफाइस है वो हमारे कंट्री के जो सोल्जर्स है, जो आर्मी मैन है, वही फॉलो करते हैं। नो, वी शुड ऑल्सो डेवलप द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस इन अवर हार्ट। हमको भी हमारी कंट्री के लिए जब सैक्रिफाइस करने का चांस मिले, आपको जब लव और रिस्पेक्ट आपको कंट्री के लिए शो करने के लिए आपको चांस मिले, तो वी शुड नेवर स्टेप बैक। हमको ऑलवेज हम एक स्टेप आगे चलना चाहिए। जब भी हमको चांस मिले, वी हैव टू शो द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड सैक्रिफाइस फॉर आवर कंट्री। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री, और यही हमारी कंट्री की खासियत है। इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री, और हमारा कंट्री इसी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इन पेज नंबर 92, different caste, religion, customs, culture, languages, etc. are integrated in India. आपको ये मालूम है कि हमारे कंट्री ने अलग अलग कल्चर को, अलग अलग ट्रेडिशंस को, अलग अलग रिलीजन को, कास्ट को, सबको एक्सेप्ट किया है। सो सबके साथ में जुड़े हुए हैं। दिस मीन्स ऑल आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया टुगेदर, दे आर रिसाइडिंग टुगेदर इन इंडिया। सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्स कल्चर है। It has been able to create the variety in the culture. That means we can say that there is a variety in our culture, in our country. India has followed the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. This means the whole world is a family. आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा, वासुदेव कुटुंबकम। This word means that whole world is a family. India in true sense spread the feeling of religious tolerance and equality in the world. India is a secular country. Secular country means हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया ही नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करें। हम कोई भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं करते हैं। दिस मीन्स द फीलिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। Unity in diversity is a unique feature of Indian culture. In our country, we see the combinations of various religions, castes, language and festivals. आपको मैंने पहले बोला था कि we can see the varieties of culture in our country. So you can see the varieties in their customs, in their festivals the people celebrate. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity. और ये हम जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमने सब कुछ फॉलो किया है। द फीलिंग ऑफ डाइवर्सिटी वी आर फॉलोइंग दिस सिंस एंशिएंट टाइम। सो वी कैन से दैट कि वी आर फॉलोइंग द फीलिंग ऑफ यूनिटी, कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस सिंस एंशिएंट